السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بار کیوں کی ہے؟ اس کا ترجمہ کوئی بتائے گا؟ سلام کا ترجمہ کیا آپ جو سلام کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی سلامتی ہو اور پر رحمت نازل ہو. نازل ہو. آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت نازل ہو. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا اللہ سے مانگ لیجیے. ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری. برائے مہربانی اپنا مائک بند کر دیجیے، بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے. جب کوئی میں سوال پوچھوں اس کا جواب دیتا ہوں مائک کھول لیجیے گا، یا پھر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو سبق سے متعلق تو مائک کھول لیجیے گا. ابھی مائک سب کے بند کر کے رکھیں، میں بند کر دوں گا تو پھر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں نا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یہ دعا آپ لوگ بھی مانگیں، دھیمی آواز میں آپ لوگ بھی اللہ سے دعا مانگ لیجیے. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یہ کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس سلائڈ کو دکھلانے کا مقصد ہے کہ جنگ میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈھال ہے، یہ نیزہ ہے، یہ تلوار ہے، سر یہ تلوار زرہ ہے. جی، تو یہ جنگ میں استعمال ہوتی ہے. اور جب کوئی گروپ یا دشمن جب ہار جاتا ہے یا جو بھی ہار جاتا ہے تو پھر ان ہتھیاروں کو پھر چھوڑ کر بھاگتا ہے. جان بچانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے زیرہ ڈھال سب چھوڑ کر بھاگتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو جیتتا ہے ان سارے چیزوں کو جمع کر لیتا ہے. کیونکہ آج کا سبق اس سے متعلق ہے، ان چیزوں سے متعلق ہے، اس لیے اس کو آپ کو دکھلایا گیا. ٹھیک ہے، جنگی سامان یا ہتھیار. دیکھیں آگے دیکھیں. آج کا سبق جو ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 25 میں ہے، 25 سے متعلق ہے. اور درس ثانی باج ہم پڑھیں گے. درس ثانی دوسرا سبق کا با. ٹھیک ہے، پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے طلب کے سبق میں کیا پڑھا؟ طلب کے باوجود کفار پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوا، کیوں عذاب نہیں آیا؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ کوئی ایک ساتھی دو ساتھی بتا دیں. کافر کہتے تھے کہ ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کتنی وجہ تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا؟ جی، دو وجہ سے. کچھ یاد آ رہا؟ دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عذاب نازل نہیں کیا. وہ دو وجہ کیا کیا ہے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی. جب کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسا عذاب نازل نہیں کرتے جس سے سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جائے. ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ استغفار. جب کوئی قوم اور لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتے ہیں، ایسا عذاب جس سے سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جائے. تو کافر جو ہے وہ اپنے طواف عبادات وغیرہ کے دوران غفران کا اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانفال کے آیتوں میں فرما دیا کہ میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جو استغفار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وجہ یاد رکھیے گا، یہ سوال آ سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ استغفار کے فضائل. استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک تو بڑی فضیلت یہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور برباد نہیں کرتے ہیں، ایسے کوئی عذاب نازل نہیں کرتے ہیں، زلزلہ، طوفان، بیماری، طاعون ایسا نہیں آتا جس سے سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جائے.
और दूसरी बात क्या थी? दूसरी जो फजाइल है वो सूरत नूह के आयतों में है। फकुल्तु इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, वो कल बताया गया था। एक दो फजीलत किसी को याद है? इस्तिगफार की फजीलत, इस्तिगफार करने से क्या मिलेगा, कोई बताएगा? सर अल्लाह ताला बारिश बरसाते जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला बारिश बरसाते अल्लाह हैं। ताला बारिश बरसाते हैं। जी, और कोई बताए या आप ही बता दीजिए और याद है तो। इसलिए समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवाल, और माल बढ़ा देते, माल देते, व बनीर, और औलाद देते, व जन्नाती व सर नहार, औलाद सर औलाद देते, बच्चे होते हैं बहुत। सर और औलाद मिलेगी। जी, और जन्नत, सर बाग, माल में इजाफा देते हैं। बागात देते हैं, बाग बहुत देते हैं, बहुत उनके बागात होते हैं। और बागान ने बागान और बागात नहरें मिलेगी। और नहरें मिलेगी, बिल्कुल सही माशाल्लाह। आज हम क्या पढ़ेंगे? माल गनीमत की तकसीम। तो सूरतुल अनफाल नाजिल हुई थी। सूरतुल अनफाल नाजिल होने की एक बड़ी वजह माल गनीमत में इख्तलाफ हुआ था। अब उसी माली गनीमत की तकसीम अब आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि माल गनीमत जो है, जो ढाल, तलवार, घोड़े, जंग लड़ने के लिए जो सामान, हथियार हैं, और बाज़ों के पास पैसे वगैरह भी होते हैं, सोना चांदी पहले ज़माने में होते थे लोगों के पास। तो ये सारी चीज़ें जब जमा हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो इन सबको माल गनीमत कहते हैं। इन माल गनीमत का क्या होगा, किसको कितना मिलेगा? आया जिसके हाथ जो लग गया वो सब ले लेगा, या इसका कोई तरीकाकार है? तो इसके बारे में अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि माल गनीमत की तकसीम किस तरह होगा। ठीक है, देखिए, और घर से करने का काम है। सफ़ा नंबर 28 से सवाल नंबर 1 का जवाब लिखकर याद करेंगे। ये घर से करने का काम है। सफ़ा नंबर, आवाज़ आ रही ना बेटा? सफ़ा नंबर 28 से सवाल नंबर 1 का जवाब लिखकर। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा भी होता है? किसने बंद कर दिया? आ रही है? जी जी आ रही। तो सफ़ा नंबर 28 से सवाल नंबर 1 लिखकर आप लोगों को याद करना। ठीक है, मैं लिखने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 41 जो आज के सबक से मुतालिक है, वो देखिए, कोई एक साथी पढ़े इसको, तिलावत करे। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूल। आयत नंबर 40। कोई एक बच्चा पढ़ दे तो फिर अच्छा है। देखिए, सब दूसरा नहीं पढ़े, माशाल्लाह आप लोग समझदार हो गए, तो एक साथी पढ़े ना। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 41। अऊज़ु हाँ, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूल। जी, तर्जुमा पढ़िए। और मुसलमानों, ये बात अपने इल्म में ले आओ कि तुम जो माल गनीमत हासिल करो, इसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है। अच्छा, माल गनीमत किसको कहते हैं? इसकी तारीफ, डिफिनेशन क्या है? माल गनीमत किसको कहते हैं, कौन बताएगा? अभी भी मैंने बताया, इससे पहले बताया था जी। सर वो माल जो जंग में वो हासिल माल हो। हाँ, सर कुफ्फार वो का, माल जंग में मुसलमानों ने कुफार से हासिल किया हो। जो वो कुफ्फार का अमवाल जो इस्लामी जंग में, शरी जंग में मुसलमानों को मिले, वो कुफ्फार का अमवाल जो शरी जंग में मुसलमानों को मिले। ऐसा नहीं कि ऐसे लड़ाई करके वो माल ले ली जाए। ठीक है, तो वो माल गनीमत है। पढ़िए, कोई एक साथी पढ़े इसको। पढ़े बेटा, कौन पढ़ रहा था? पढ़े, हेलो, आवाज जो आ रही है? दुश्मन का दुश्मन माल का जो जिहाद के मालो दौरान जिहाद के दौरान मुजाहिदीन के एक हाथ। साथी, एक बच्चा पढ़े। सर सही है, मैं पढ़ूं? दुश्मन का जो माल जिहाद के दौरान दुश्मन का मुजाहिदीन के जो हाथ माल आया जिहाद हो के दौरान वो माल गनीमत कहलाता है। नहीं करे मेरे इस प्यारे आयत बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जिसका नाम बता देता हूँ, अब्दुल्ला रेहान पढ़े भाई। अब्दुल्ला रेहान पढ़े।
कहाँ चले गए आप? मोहम्मद मुबशिर पढ़िए। दुश्मन का जो माल जिहाद के दौरान मुजाहिदीन के हाथ आया हो वो माल गनीमत कहलाता है। इस आयत में इसी की तकसीम का उसूल बयान फरमाया गया है, जिसका खुलासा ये है कि जितना माल इस तरह हासिल हुआ इसके 5 हिस्से किए जाएंगे। इस तरह हासिल हो उसके 5 हिस्से किए जाएंगे। ठीक है, चले। इनमें से 4 हिस्से तो मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम होंगे और 5वां हिस्सा बैतुल माल में दाखिल किया जाएगा। दाखिल किया जाएगा क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि माल गनीमत, ढाल, तलवार, घोड़े, सामान, जो चीज़ भी मुसलमानों ने जमा किया है जंग में, जंग के बाद, इन सारे की कीमत लगाई जाएगी। ठीक है, उन सारे की कीमत लगाई जाएगी। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए के क्या है, सामान है, सबकी कीमत, सब चीज़ों को इकट्ठा किया गया तो अंदाजा लगाया गया कि 5 लाख है। तो 5 लाख को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो कितने लाख का हिस्सा बनेगा? 1 लाख का। तो कह रहे हैं कि 5 हिस्सा में से 5 लाख माल गनीमत इकट्ठे हो गए, इसको 5 हिस्सा करेंगे, यानी 1-1 लाख के 5 हिस्से बनाएंगे। 1 लाख रुपए माल बैतुल माल में जमा होगा। ठीक है, फिर उसको 5 जगहों पर खर्च करेंगे, वो अभी आगे आगे बताई जाएगी। और जो 4 हिस्से हैं यानी 4 लाख रुपए हैं, ये मुजाहिदीन में, जंग लड़ने वाले फौजियों में तकसीम होगा। बात समझ में आ गई, वाज़ेह हो गई या दोबारा बताओ? माल गनीमत जो इकट्ठे किए गए जितनी भी माल है, उन सब मालों को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा बैतुल माल में सरकारी फंड में जमा होगा, जिसको यानी उस एक हिस्से को 5 लोगों पर खर्च किए जाएंगे। और जो 4 हिस्से हैं यानी कि 5 लाख थे, 1 लाख बैतुल माल में सरकारी फंड में जमा हो गया, और जो 4 लाख रुपए है उसको क्या करेंगे, मुजाहिदीन में तकसीम करेंगे, फौजियों में तकसीम करेंगे। बात वाज़ेह हो गई? ये बात समझ में आ गई? देखिए बच्चे फिर गड़बड़ कर देते हैं ना, इसको समझते नहीं, फिर उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। यानी मुकम्मल माल को, तमाम माल को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा बैतुल माल में जमा होगा, जिसको 5 लोगों पर खर्च किए जाएंगे, यानी 1 लाख को 5 लोगों पर खर्च करेंगे। और जो 4 लाख रुपए है, ठीक है, या जितने भी हो, चौथा हिस्सा, 4 हिस्से, उन 4 हिस्सों को मुजाहिदीन, सिपाहियों पर, फौजों पर खर्च करेंगे। ठीक है, उनमें तकसीम कर देंगे। वाज़ेह हो गई? किसी को समझ में जाए तो अभी पूछ लीजिए, दोबारा इस तरह की बात आएगी, सवाल आएगा। जी, सबको समझ में आ गई? चले, पढ़िए। इसको कौन पढ़ेगा? अब्दुल रहमान पढ़े बेटा। कहाँ गए? फिर बैतुल माल के इस 5 हिस्से में 5 हिस्से खमस ये इसको खुमुस कहते हैं, खुमुस। किस तरह खर्च किया जाएगा इसकी तफसील करते हुए इस आयत ने अव्वल तो ये बताया, तो किस तरह खर्च किया जाएगा इसकी तफसील करते हुए इस आयत ने अव्वल तो ये बतलाया है कि ये माल असल में अल्लाह ताला की मलकियत है और इसके हुक्म के तहत तकसीम होगा। इसके बाद इसके 5 मुसारिफ बयान फरमाए गए हैं। अच्छा, अब कौन पढ़ेगा? अब्दुल मुक्सिद पढ़िए। जी, अब्दुल मुक्सिद। उमर पढ़िए। एक हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, दूसरा हिस्सा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों का है, क्योंकि उन्होंने आपके इस्लाम की नुसरत में बड़ी कुर्बानियाँ दी थी और उनके लिए ज़कात का माल भी हराम कर दिया गया था, और बाकी 3 हिस्से यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों में खर्च करने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, देखिए 5 हो गए। एक हिस्सा है यानी कि जो 1 लाख रुपया था उसको फिर 5 लोगों पर खर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने पर खर्च करने के लिए लेंगे, फैमिली के लिए लेंगे, अपने ज़ात पर खर्च करने के लिए। 20,000 रुपये जो है वो अपने रिश्तेदारी, करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करेंगे।
20,000 रुपए आप पे जाकर किस पर खर्च करेंगे? यतीमों पर, और 20,000 रुपए मिस्किनों पर। यतीम जिसके वालिद साहब नहीं है, बुलुगत से पहले, बड़े होने से पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तो वो यतीम कहलाता है। ऐसे बच्चों पर खर्च किए जाएंगे। और 20,000 रुपए यानी कि 1 लाख का 5वां हिस्सा मिस्किनों पर खर्च किए जाएंगे, और 20,000 रुपए 1 लाख का 5वां हिस्सा मुसाफिरों पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया कि इन 5 लोगों पर आप अपनी मर्जी सवाब दीद पर खर्च करें, यानी कमी बेशी बराबर इन पर खर्च करना जरूरी नहीं है। किसी पर अगर ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा खर्च करें, किसी पर कम जरूरत है तो कम खर्च करें। यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था इन 5 मसारिफ में कमी बेशी करने की, यानी अपनी सवाब दीद पर खर्च कर सकते हैं। ये बात याद रहेगी, यह लिखा हुआ नहीं लेकिन आप लोगों को बताया मैंने, याद रखें। जी सर। अब देखिए सवाल आ गया, सवाल किस तरह हमें हल करना है। यहाँ पर सवाल है, जवाब भी दिया जा रहा है। पढ़िए सवाल को। जी इन आयत में माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? जवाब, सर पढ़िए पढ़िए, पढ़ने दीजिए इसको, अभी बाद में सवाल अनफाल की पूछिएगा। जी पढ़िए बेटा। सूरतुल अनफाल की आयत 81 में बयान किया 41 गया है 41 कि में बेटा, ये 41 है, 41। 41 में बयान किया गया है कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह ताला और उसके रसूल का है और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन के हैं। जी 5वें हिस्से के मसारिफ 5 है, यानी जो 1 लाख रुपया मिसाल के तौर पर मैंने बताया था कि 5 लाख रुपए माले गनीमत टोटल जमा हुए कुल, उनमें से एक हिस्सा यानी 1 लाख रुपया क्या करेंगे? बैतुल माल में जमा। जी तो उसके 5 हिस्से हैं, उसको अब नंबर वार बताया जा रहा है। ठीक है। 5वें हिस्से के मसारिफ यानी खर्च करने की जगह। मसारिफ किसको कहते हैं? खर्च करने की जगह। चले पढ़े, पढ़ो प्यारे। इस 5वें हिस्से में अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शुरू से पढ़ो। सवाब से 5वें हिस्से के मसारिफ 5 है, यहाँ से पढ़े। 5वें हिस्से के मुशारिफ 5 हैं। रसूल नंबर 1, रसूल नंबर 2 जबिल कुर्बा यानी करीबी रिश्तेदार, जबिल कुर्बा। नंबर 3, नंबर 4 मिस्कीन, नंबर 5 और मुसाफिर। जी इस 5वें हिस्से में अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवाब के मुताबिक खर्च करने की इजाजत थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बेशी कर सकते हैं, जिसको देना चाहे दे, लेकिन करना है इन 5 लोगों पर। ठीक है। आज के सबक का खुलासा पर क्या हुआ, क्या सीखा, क्या समझा? कौन बताएगा? माल गनीमत की तकसीम। माल गनीमत की तकसीम। और माल गनीमत किसको कहते हैं? माल गनीमत के 5 हिस्से होते हैं। जी क्या क्या? एक हिस्सा सर अल्लाह ताला का और 4 हिस्से मुजाहिदीन के। मुजाहिदीन का। फिर एक हिस्सा जो अल्लाह ताला रसूल का है, उसको फिर कितने लोगों पर खर्च करेंगे? जरूरी रिश्तेदारों का। 5 लोगों पे। 5 लोगों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर खर्च करेंगे, करीबी रिश्तेदार पर खर्च करेंगे, यतीम पर, मिस्किन पर और मुसाफिर पर। ठीक है, वाज़ेह हो गई बात। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। सर 1 मिनट बेटा।